ایک وقت کی بات ہے کہ ایک عظیم الشان بادشاہ اور خوبصورت ملکہ روسے کی خوبصورت وادیوں میں رہتے تھے۔ بادشاہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور بیچاری ملکہ کو اپنی 3 حسین بیٹیوں کے ساتھ محل کی شان و شوکت چھوڑ کر ایک چھوٹے سادہ سے گھر میں منتقل ہونا پڑا۔ وہاں انہوں نے ایک گائے رکھی اور نہایت احتیاط سے اپنے چھوٹے سے گوبھی کے باغ کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ ایک صبح کچھ یوں ہوا کہ سب سے بڑی بیٹی نے محسوس کیا کہ ان کے باغ میں سے گوبھیوں کا ایک بڑا حصہ غائب ہے۔ اس بات نے اسے حیران اور پریشان کر دیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ کسی جانور کا کام تھا یا پھر کوئی چور ان کے باغ میں آیا تھا؟ اس نے جلدی سے اپنے گھر والوں کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ گھر کے دیگر افراد بھی جلدی سے وہاں پہنچے اور اس پراسرار واقعے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ آخرکار بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات بیٹھ کر پہرا دے گی تاکہ وہ اس مومیا کا جواب تلاش کر سکے۔ تمام گھر والے اس پر متفق ہو گئے۔ آخرکار جب رات گہری ہو گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے جگمگانے لگا تو بڑی بیٹی باغ کے ایک کونے میں کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ ابھی اسے انتظار کرتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک بڑے دیو نے باغ کی باڑ کو عبور کیا اور سیدھا گوبھیوں کے باغ میں داخل ہو گیا۔ وہ ہری بھری شاداب گوبھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک بڑی سی چھری نکالی اور گوبھیوں کو کاٹ کاٹ کر اپنی بڑی سی ٹوکری میں ڈالنے لگا۔ ابھی وہ اپنی ٹوکری بھرنے میں مصروف ہی تھا کہ بڑی بیٹی ہمت کر کے اس کے پاس پہنچی اور پوچھا، تم ہماری گوبھیاں کیوں لے جا رہے ہو؟ لیکن دیو نے کوئی جواب دینے کے بجائے اسے بھی اٹھا کر گوبھیوں کے ساتھ اپنی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پھر وہ بڑے بڑے قدم لیتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیو کا محل آسمان کی بلندیوں پر بادلوں کے درمیان تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنی ٹوکری کو فرش پر الٹ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی شکایت کرتی، دیا غصے سے آگے بڑھا اور بولا، سنو لڑکی، یہ کام تمہیں ہر حالت میں کرنے ہیں۔ تمہیں پہاڑی پر جا کر میری گائے کو چرانا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں اون لینا ہوگی، اسے دھونا، دھاگوں میں الگ کرنا، کنگھی کرنا اور پھر اسے کاٹ کر میرے لیے کپڑا بنانا ہوگا۔ اگر تم یہ سب نہ کر سکی تو یاد رکھو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ سب کہہ کر دیو اپنے محل سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ دیو کے خوف سے لڑکی نے بالکل ویسا ہی کیا۔ وہ بوڑھی گائے کو چرانے کے لیے اوپر پہاڑی پر لے کر گئی۔ جب وہ واپس پہنچی تو بھوک کو محسوس کرتے ہوئے اس نے چولہے پر ایک برتن رکھا اور اپنے لیے دلیا بنانے لگی۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھی تو اچانک اس نے خود کو پیلے بالوں والے ننھے منے بونوں کے ایک ہجوم کے درمیان پایا۔ ہر کوئی اس سے چلا چلا کر دلیا مانگ رہا تھا۔ شہزادی نے ان چھوٹے بونوں کو حقارت سے دیکھا اور طنزیہ کہا، تمہارے لیے یہاں ایک دانہ بھی نہیں ہے، بھاگ جاؤ ادھر سے۔ یہ سنتے ہی ننھے بونے غائب ہو گئے اور شہزادی نے خوش ہو کر اپنا دلیا کھا لیا۔ لیکن جب اس نے اون کا کام شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ یہ کام نہیں کر پا رہی، چاہے وہ جتنی محنت بھی کر لے، وہ دیو کا دیا ہوا کام پورا نہ کر سکی۔ جب دیو واپس پہنچا اور لڑکی کا کام ادھورا پایا تو غصے سے گرجتے ہوئے اس نے لڑکی کو مرغیوں کے ڈربے میں پھینک دیا۔ اب ملکہ کے چھوٹے سے گھر میں سب لوگ یہ سوچ کر پریشان تھے کہ سب سے بڑی بیٹی آخر کہاں غائب ہو گئی۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی رات دوسری بیٹی کو بند گوبھی کے کھیت کی نگرانی کے لیے بھیجا جائے گا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی اور چاند کی ہلکی روشنی جگمگانے لگی تو دوسری بیٹی نے اپنا کمبل اٹھایا اور کھیت کے قریب بیٹھ گئی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور ماحول میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سب کچھ سو رہا ہو۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی، کھیت کی طرف ایک عجیب سا سناٹا چھانے لگا تھا۔ پھر اچانک دور کہیں سے ایک بھاری قدموں کی آواز آئی۔ قدموں کی گونج اتنی بھاری تھی کہ جیسے زمین بھی ہل رہی ہو۔ وہ دیو تھا جو اپنی بڑی اور بھاری شکل کے ساتھ کھیت کی باڑ کے اندر آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سے زمین لرز رہی تھی۔ اس نے بڑی تیز رفتاری سے گوبھیاں توڑنا شروع کی۔ دوسری بیٹی نے جب دیو کو
रोकने की कोशिश की तो दियो ने उसे भी पकड़कर अपनी टोकरी में डाला और उसे अपने साथ लेकर अपने महल की तरफ भाग गया। महल ले जाकर दियो ने टोकरी जमीन पर फेंक दी और लड़की को सख्ती से तनबीह की कि वो गाय को चराने के लिए ऊपर हरी भरी पहाड़ी पर लेकर जाए और दूसरा ये कि वो ऊन से खूबसूरत कपड़ा तैयार करे। जैसे ही दियो अपने महल से निकला और कदम बढ़ाता हुआ जंगल की गहराइयों में गुम हो गया तो दूसरी लड़की भी गाय को चराने के लिए ऊपर पहाड़ी पर ले गई। जब वो वापस आई तो उसने अपने लिए पॉरेज तैयार किया। जैसे ही वो इसे खाने के लिए बैठी तो पीले सर वाले बोनों ने उसे घेर लिया और वो उससे पॉरेज मांगने लगे। लड़की ने उन्हें हिकारत से देखा और भाग जाने को कहा। बोने वहाँ से भाग गए और गायब हो गए। जब लड़की ने उनका काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो ये काम नहीं कर पा रही। चाहे वो जितनी मेहनत भी कर ले, वो दियो का दिया हुआ काम पूरा न कर सकी। उनको धोना, सुलझाना, कंघी करना और काटना सब उसके लिए नामुमकिन सा बन गया। जब दियो वापस पहुंचा और लड़की का काम अधूरा पाया तो गुस्से से गरजते हुए उसने लड़की को मुर्गियों के डिब्बे में उसकी बहन के साथ फेंक दिया, जहाँ से वो दोनों वापस नहीं आ सकती थी। अब मलका के पास सिर्फ एक ही बेटी बच्ची थी, सबसे छोटी। ये नौजवान लड़की अपनी माँ के पास गई और कहा कि वो इस रात खेत की निगरानी करेगी ताकि पता चले कि उसकी बहनों के साथ क्या हुआ था। इब्तदा में मलका इसकी इजाजत देने में हिचकिचाई क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी को खतरे में डालना नहीं चाहती थी, मगर बेटी की बार बार की दरख्वास्तों और उसके मजबूत इरादे को देखकर मलका ने आखिरकार हार मान ली और इजाजत दे दी। लड़की ने अपना कंबल उठाया, हिम्मत बांधी और बंद गोभी के खेत में जाकर बैठ गई। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और अंधेरा अपनी पुरस्रार चादर बिछा चुका था। हवा में अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी आफत आने को हो। जैसे ही रात गहरी हुई तो दूर कहीं से भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। दियो खेत की बाड़ के अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़ी तेज रफ्तारी से गोभियां तोड़ना शुरू की। तीसरी बेटी ये मंजर देखकर चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दियो ने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाला और उसे भी अपने साथ लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। कुछ वक्त बाद जब दियो अपने हाल में वापस आया तो उसने लड़की को टोकरी से बाहर निकाला और उसे भी वही हदायत दी जो उसने उसकी बहनों को दी थी। नौजवान लड़की ने उसकी बात को ध्यान से सुना और खामोशी से सिर हिलाया। दियो हाल से बाहर निकलकर जंगल की गहराइयों में चला गया। जैसे ही दियो की भारी कदमों की गूंज दूर हुई, सबसे छोटी बहन ने अपने काम का आगाज किया। वो पुरानी गाय को हरी भरी पहाड़ियों पर ले गई ताकि गाय वहाँ खूब चरती रहे। जब वो वापस पहुंची तो उसे भूख लगी। उसने जल्दी से पोरीज तैयार किया ताकि अपना पेट भर सके, लेकिन जैसे ही उसने गर्म पोरीज को अपने प्याले में डाला और पहला नवाला लेने की तैयारी की, अचानक कमरे में हलचल मच गई। पीले बालों वाले बोने टोलियों की शक्ल में नमूदार हुए। उनके छोटे छोटे हाथ और चमकती हुई आंखें प्याले की तरफ लपक रही थीं। हर बोना एक ही इल्तजा कर रहा था, हमें भी थोड़ा सा दो, हमें भी खाने के लिए कुछ दो। लड़की ने उनके साथ अपना पॉरेज शेयर किया। जब सब बोने खा पी कर चले गए तो उनमें से एक बोना वहीं रुक गया। अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे दे सकती हैं। लेकिन मैं आपको इस काम की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे इसकी कीमत नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी वापसी पर आप मुझे मेरा नाम बता सकें तो मैं आपको आपकी दोनों बहनों के बारे में बताऊंगा कि वो किधर हैं। बोने ने शहजादी से ऊन ली और चला गया। इत्तेफाक से उसी रात एक भिखारन उनके दरवाजे पर आई और धीरे से दस्तक देने लगी। मुझे एक रात यहाँ क़याम करने दें। मैं बहुत थकी हुई और भूखी हूँ। शहजादी ने भिखारन को बाहर ले जाकर दरख्तों के पीछे बिठाया और उसे खाने के लिए ब्रेड और चीज दी। ये महल मेरा नहीं बल्कि दियो का है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने कभी पीले सर वाले बूने देखे हैं? वो अजीब मखलूक हैं जो अचानक जाहिर हो जाती हैं और हमेशा कुछ मांगती रहती हैं। नहीं, मैंने तो ऐसी किसी मखलूक को कभी नहीं देखा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खाना खिलाया। ये कहकर भिखारन पहाड़ की चोटी की तरफ चल दी ताकि रात क़याम करने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। ऊपर उसे एक गार दिखाई दिया। वो उसमें दाखिल हो गई। ये जगह उसे सोने के लिए
बहुत आरामदेह महसूस हो रही थी। गार में उसे एक रोशन सुराख दिखाई दिया। जब उसने अंदर झांका तो वहाँ मंजर ही और था। बेशुमार छोटे बूने बड़ी मेहनत और जोश से काम कर रहे थे। कुछ ऊन धो रहे थे तो कुछ उसे अलग करके साफ कर रहे थे। कमरे के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कतार में कताई करने वाले बैठे थे, जिनके चरखों के पहिए तेजी से घूम रहे थे। एक छोटा पीले बालों वाला बोना वहाँ दौड़ रहा था, जैसे उन सबको हिदायत दे रहा हो। उसकी आवाज गूंज रही थी और वो एक खुश मिजाज गाना गुनगुना रहा था। पेरी फूल मेरा नाम है, ऊन से कपड़े बनाना मेरा काम है। बहकारण फूरन गार से बाहर निकली और तेज कदमों के साथ चलने लगी। वो जान गई थी कि शहजादी को इसी नाम की तलाश है। उसने शहजादी को तमाम तर सूरतहाल से आगाह कर दिया। अगली सुबह बूना बेशुमार खूबसूरत और रंगीन कपड़ों के थान लेकर शहजादी के पास हाजिर हुआ। तो बताओ शहजादी, मेरा नाम क्या है? मेरे ख्याल में आपका नाम पेरी फूल है। तब बोने ने उसे बताया कि उसकी बहनें मुर्गियों के डरबे में हैं। छोटी बहन को आखिरकार अपनी बहनें मिल गईं। रात को उन्होंने वहाँ से भाग निकलने का मंसूबा तैयार कर लिया। उन्होंने टोकरी को कीमती जवाहरात से भरा और फिर उन्होंने जवाहरात को ऊपर से घास से ढाप कर छुपा दिया ताकि किसी को शक न हो उसके। सुबह जब दियो वापस आया और उसने हाल में खूबसूरत और कीमती कपड़ों के थान देखे तो वो हैरान रह गया। तब शहजादी ने नरमी से कहा, मैंने अपनी माँ के लिए भी एक चीज तैयार की है। मैंने एक टोकरी में हरी भरी घास भरी है ताकि वो अपनी गाय को खिला सके। वहाँ की घास पीली पड़ चुकी है और मेरी माँ बहुत परेशान होगी। ये मेरी माँ के लिए एक तोहफा है, अगर आप इजाजत दें तो। दियो, जो पहले ही खुश था और शहजादी के काम से मुतासिर हो चुका था, फौरन बोला, ये तो कोई बात ही नहीं। वो टोकरी में सुबह होते ही खुद तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगा। तीनों लड़कियों ने खुद को घास के नीचे टोकरी में छुपा लिया। सुबह जब दियो गहरी नींद से बेदार हुआ तो उसे याद आया कि उसे लड़की का काम करना है। चुनांचा वो फौरन बिस्तर से उठा और बाहर की जानिब चल दिया। बाहर दरवाजे के करीब ही घास से भरी टोकरी पड़ी थी। दियो ने वो टोकरी उठाई और उनकी माँ की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने उनकी माँ को बताया कि ये उनकी छोटी बेटी की तरफ से उनके लिए तोहफा है और ये कि वो इसके कब्जे में है। ये सुनकर उनकी माँ परेशान हो गई और उसने एक तरकीब सूझी। उसने दियो से कहा कि वो ये घास बाहर रखाए। जैसे ही दियो घास लेकर बाहर निकला तो माँ ने खिड़की से गर्म पानी की एक बाल्टी दियो पर फेंक दी। तकलीफ से वो मौका पर ही हलाक हो गया। तीनों लड़कियाँ टोकरी से बाहर आई और अपनी माँ के गले लग गईं। अब उनके पास काफी दौलत भी आ चुकी थी और उनके बुरे दिन खत्म हो चुके थे।